بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو ریڈیو میں خوش آمدید۔ میں اپنے کمرے میں اپنے بستر پر لیٹا ہوا تھا کہ اچانک مجھے کمرے میں کچھ غیر معمولی پن کا احساس ہوا۔ مجھے ایسے دکھائی دیا جیسے میرے کمرے میں روشنی آہستہ آہستہ بڑھتی جا رہی ہے۔ میں حیران ہو گیا کیونکہ اس وقت لائٹ آف تھی اور ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا، اسی لیے یہ روشنی کچھ زیادہ ہی محسوس ہو رہی تھی۔ یہ روشنی کہاں سے آ رہی تھی؟ میں دل ہی دل میں سوچتا ہوا اٹھ کر بیٹھ گیا، حالانکہ میں اندر سے خوفزدہ ہو گیا تھا اور میرا دل تیز تیز دھڑک رہا تھا، لیکن پھر بھی میں نے اٹھ کر دیکھنے کی کوشش کی کہ آخر یہ روشنی کہاں سے آ رہی ہے، اور پھر میں نے دیکھا کہ دروازے کے نیچے سے روشنی آہستہ آہستہ کمرے میں داخل ہو رہی ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ آخر یہ روشنی کس چیز کی ہے، کیونکہ یہ ایک دھوئیں کی طرح پھیلی ہوئی تھی اور صرف اتنی ہی جگہ روشن تھی جس جگہ پر وہ روشنی تھی، باقی کمرہ تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا۔ آہستہ آہستہ یہ سب دھواں نما روشنی ایک جگہ پر اکٹھی ہونے لگی اور پھر اکٹھی ہوتے ہوتے اس دھوئیں نے ایک شکل اختیار کر لی۔ میں حیرت سے یہ سب دیکھ رہا تھا اور پھر اس روشنی میں میرے سامنے دو چہرے نمودار ہوئے۔ وہ دونوں بے حد خوبصورت اور جوان لڑکیاں تھیں۔ میں حیرت سے انہیں دیکھنے لگا۔ ان میں سے ایک اچانک میری طرف بڑھی اور کہنے لگی، دریا خان، ہم تمہیں ساتھ لے کر جانے کے لیے آئے ہیں، تم ہمارے ساتھ چلو۔ میں ڈر کر پیچھے ہٹ گیا اور پوچھنے لگا، میرا کیا قصور ہے؟ مجھے کیوں ساتھ لے جانے آئی ہو؟ لیکن انہوں نے مجھے کچھ نہیں بتایا اور میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ میں ایک دم زور سے چلانے لگا۔ میرے چلانے پر ان کو غصہ آ گیا اور ان میں سے ایک نے میرے منہ پر ہاتھ رکھ لیا اور کہنے لگی، چلانے کی ضرورت نہیں ہے، خاموشی سے ہمارے ساتھ چلو۔ اس کے بیانک اور شفاف انداز پر میری ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ دوڑ گئی۔ اس کی آواز کی دہشت سے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، اور پھر میں جیسے ہی ایک دم جھٹکے سے ہوش میں آیا، میں اٹھ کر بیٹھ گیا تو دیکھا کہ اپنے کمرے میں ہی تھا، لیکن اس وقت نہ تو وہ روشنی تھی اور نہ ہی وہ دو چہرے موجود تھے۔ میرا نام دریا خان ہے۔ میں چھوٹے موٹے کام کر کے اپنا گزر بسر کرتا تھا، لیکن گزارا بہت مشکل سے ہوتا۔ ہم لوگ 6 بہن بھائی تھے، جبکہ مجھ سے بڑے 2 بھائیوں کی شادیاں بھی ہو گئی تھی، ان کے بھی بچے تھے، اور وہ لوگ شادی کر کے اب ہم لوگوں سے الگ ہو چکے تھے۔ اب آخری نمبر پر میں تھا، جبکہ میرے بعد 3 بہنیں تھیں جن کی ذمہ داری بھی اب مجھے اٹھانی تھی، کیونکہ ابا بکریاں چرانے کا کام کرتے تھے اور اب وہ اس سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے تھے۔ جب ان کا کام کرتے وقت پیر پھسلا تھا اور وہ ایک پہاڑی سے رینگتے ہوئے نیچے گرے تھے۔ ان کی ریڑھ کی ہڈی میں فریکچر آ گیا تھا، اب وہ چلنے پھرنے کے قابل نہیں رہے تھے، اس لیے مجھے ہی کچھ نہ کچھ کر کے اس گھر کو چلانا تھا اور اپنی بہنوں کی ذمہ داری بھی پوری کرنی تھی۔ اب میں دن رات اس پریشانی میں مبتلا رہتا کہ آخر مجھے گھر کے خرچے کے لیے کیا کرنا چاہیے۔ اماں کو ہر وقت پریشان اور روتا دیکھتا تو میرا دل کڑتا رہتا۔ میں کام کے حوالے سے پریشان تھا۔ پھر ان حالات میں نے وہ فیصلہ کیا جو شاید کبھی عام حالات میں نہ کرتا۔ میں نے اپنے شہر اور اپنے علاقے میں دور جا کر اپنا رزق کمانے کا فیصلہ کیا۔ میں نے ایک شہر کا رخ کیا، میں وہاں پر چلا آیا۔ یہاں پر پہلے ہی میرے خاندان کے بہت سارے لڑکے نوکریاں کر رہے تھے، میں بھی ایک اچھے مستقبل کی خاطر یہاں پر چلا آیا۔ رہائش کا مجھے مسئلہ یوں نہیں ہوا کہ میرے کزن کے پاس مجھے آرام سے جگہ مل گئی تھی، لیکن اب اگلا مرحلہ نوکری تلاش کرنے کا تھا۔ میں نے بہت جگہ پر نوکری دیکھی، لیکن مجھے نوکری نہیں ملے، اگر ملتی بھی تھی تو اس کی تنخواہ کم ہوتی تھی۔ میرا دل اسے کرنے کے لیے راضی نہیں ہوتا تھا، کیونکہ اس سے زیادہ تنخواہ میں تو بکریاں چرانے والے ابا سے کام کر کے لے رہا تھا۔ تو اگر میں اتنی کم تنخواہ میں یہاں پر کام کرتا تو پھر میرے لیے تو میرا گاؤں ہی بہتر تھا۔ میں صبح سویرے کام کی تلاش میں نکل جاتا اور کام کی تلاش میں شام تک مارا مارا پھرتا۔ پہلے شروع میں تو مجھے اس شہر کی خوبصورتی نے بھی بہت متاثر کیا، اس لیے مجھے گھومنا پھرنا اچھا لگتا۔ اس سے میرے ذہن کا بوجھ اور دباؤ کافی حد تک بہتر ہو جاتا، لیکن آہستہ آہستہ میں اب ان چیزوں سے تنگ پڑ رہا تھا۔ گھر کے خراب حالات دیکھ کر میرے سر کی ایک سائڈ پر درد رہنے لگا، اور میں محسوس کرتا تھا کہ جب بھی یہ درد میرے سر میں ہوتا ہے میں آرام کی غرض سے 2 گھڑی لیٹتا ہوں۔ جیسے ہی میری آنکھیں بند ہوتی ہیں تو 2 خوبصورت چہروں والی نوجوان لڑکیاں میرے سامنے آتی ہیں، اور یہ منظر بالکل حقیقی لگتا۔ وہ میرے بالوں میں انگلیاں پھیرتی ہیں، جس کے بعد میری آنکھ کھلتی ہے تو میرے سر کا درد کہیں غائب ہو چکا ہوتا ہے۔ اس بات نے مجھے بہت پریشانی میں مبتلا کر دیا تھا۔ اب میں ان سب سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے ایسے شہر میں تھوڑی سی تفریح کر رہا تھا
تاکہ میرے دل کا بوجھ کچھ کم ہو۔ میرا کزن محبت خان مجھے سمجھاتا اور کہتا کہ ہر چیز کے لیے وقت لگتا ہے، محنت لگتی ہے، تم بھی محنت کرو، ضرور تمہیں اس کا پھل ملے گا۔ میں بس سر ہلا کر رہ جاتا۔ اب میں اس کو کیا بتاتا کہ میرے پاس موجود پیسے آہستہ آہستہ کر کے ختم ہوتے جا رہے ہیں۔ روزانہ بسوں ویگنوں کے کرایوں میں اتنا خرچ ہو جاتا تھا کہ جس کا حساب ممکن نہیں تھا۔ کھانا تو محبت خان کی طرف سے مل جاتا تھا۔ میرے لیے تو ایک ایک روپیہ اس وقت قیمتی تھا، میں تو اسی جوڑ توڑ میں مصروف تھا، کیونکہ اب میرے اوپر گھر اور بہنوں کی ذمہ داری تھی، اور اماں کا وہ معصوم پریشان چہرہ ہر وقت میرے دماغ میں گھومتا رہتا تھا۔ میں بہت کم عمر تھا، اتنی ذمہ داریوں کا بوجھ لیے یہاں چلا آیا، اور اب تو 2 دن ہو گئے تھے میں گھر سے باہر ہی نہیں نکلا تھا، کیونکہ اگر میں بسوں ویگنوں میں اپنے پیسے خرچ کر دیتا تو میرے پاس یہاں رہنے کے لیے 1 روپیہ بھی نہ بچتا۔ میں بہت پریشان تھا کہ اچانک اللہ کی طرف سے ایک وسیلہ بن گیا۔ ہوا کچھ یوں تھا کہ انہی دنوں میں محبت خان کے کمرے میں رہائشی ایک لڑکا اپنے گاؤں واپس جا رہا تھا، کیونکہ اس کا یہاں پر دل نہیں لگ رہا تھا، اس لیے وہ یہاں سے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر واپس جا رہا تھا۔ وہ آلو چنے کا کام کرتا تھا اور ایک کالج کے باہر ریڑھی لگا کر چنے بیچتا تھا۔ محبت خان نے مشورہ دیا کہ اس کی ریڑھی لے لو اور تم بھی یہی کام شروع کر دو، جب تک کہ تمہیں کوئی اچھی نوکری نہیں مل جاتی، تم 2 سے 3 گھنٹوں میں اچھا کما لو گے، تب تک کے لیے یہ کام برا نہیں ہے۔ مجھے اس کا یہ مشورہ اچھا تو نہیں لگا، لیکن وقتی طور پر میں نے اس کے اوپر عمل کرنے کا سوچ لیا، کیونکہ کچھ نہ ہونے سے کچھ ہونا بہتر ہے۔ میں نے اس لڑکے سے بات بھی کر لی اور اس کی ریڑھی لے لی، جس کے پیسے میں نے اسے 1 مہینے بعد لوٹانے کے لیے کہا تھا، اور وہ مان بھی گیا۔ میں نے بھی اللہ کا نام لے کر آلو چنے بیچنے کا کام شروع کر دیا، اور میں شہر کے ایک مشہور کالج کے باہر ریڑھی لگا کر بیٹھ گیا۔ میرے ہاتھ میں قدرتی طور پر ذائقہ تھا، اور کچھ ہوٹل میں کام کرنے کی وجہ سے مجھے ان چیزوں کی سمجھ بوجھ بھی تھی، اسی لیے میرے ہاتھوں چنے بکنے لگے۔ میں جتنے بھی چنے بنا کر لے جاتا وہ آدھے گھنٹے میں ہی بک جاتے۔ لڑکیاں بہت شوق سے کھاتی تھی، اور اکثر لڑکیوں کو تو مایوس ہو کر لوٹنا پڑتا کیونکہ ان کے لیے چنے بچتے ہی نہیں تھے۔ میں روزانہ کی نسبت چنوں کی تھوڑی تھوڑی مقدار بڑھا رہا تھا، لیکن میرے چنے ہمیشہ ہی کم پڑتے اور لڑکیاں مایوس ہو کر لوٹ جاتی۔ مجھے بھی اب اس کام میں مزہ آنے لگا، اس کام میں برکت بھی تھی اور پیسے بھی اچھے ہو جاتے۔ اب میں خوش رہنے لگا۔ میں نے 1 مہینے کے بعد ہی اس لڑکے کو ریڑھی کے پیسے بھیج دیے، اور اس کی مطلوبہ رقم سے زیادہ رقم ہی اسے بھیجی۔ ساتھ ہی ساتھ ابا کو بھی اچھی خاصی رقم بھجوا دی، تاکہ وہ 1 مہینے کا سودا سلف لے کر آرام سے رہ سکیں۔ اب میں اپنے کام کا دائرہ کار اور بڑھا رہا تھا، اور تقریباً 10 بجے میں کالج کے باہر جا کر کھڑا ہو جاتا۔ جیسے ہی کالج میں بریک کا وقت ہوتا، دھڑا دھڑ لڑکیاں باہر آ کر مجھ سے چنے خرید لیتی۔ میں نے اب چنوں کے 2-3 قسم کی ورائٹی دینا شروع کر دی تھی، میٹھے چنے، کھٹے چنے اور پاپڑی چنے۔ میری ریڑھی سے سب ملتے۔ لڑکیوں کو میرے چنے بہت پسند تھے، سب سے زیادہ تو پاپڑی چنے لڑکیوں کی ڈیمانڈ ہوتے۔ میں روزانہ کی بنیاد پر جو لڑکیاں مجھ سے چنے لیتی تھی ان کو تو میں پہچاننے بھی لگ گیا تھا۔ اب وہ اکثر آ کر سلام دعا کر کے چنے لے جایا کرتی۔ ایک دن تقریباً 10 بجے 2 لڑکیاں ریڑھی پر چلی آئیں۔ بریک کا وقت نہیں ہوا تھا۔ 2 لڑکیاں ریڑھی تک آئی، سلام کر کے مجھ سے چنوں کا مطالبہ کیا۔ دونوں نے 1-1 پلیٹ چنے کروائے اور وہیں پر کھڑے ہو کر کھانے لگ گئی۔ میں بہت عجیب کشمکش کا شکار ہوا۔ یہ لڑکیاں کالج سے ہی نکلی تھیں، مگر حیرت کی بات یہ تھی کہ وہ مجھے بہت جانی پہچانی نظر آ رہی تھی۔ میں اپنے ذہن پر زور دینے لگا کہ آخر ان کو کہاں پر دیکھا ہے۔ یہ دونوں شکلیں یقیناً میں نے پہلے بھی کہیں دیکھی تھی، مگر اب مجھے یاد نہیں آ رہا تھا کہ یہ کون ہے، اور ان کے چہرے آخر میں نے پہلے کہاں دیکھ رکھے۔ ان دونوں لڑکیوں نے کالے رنگ کے عبائے پہنے تھے اور بہت خوبصورت شکل و صورت کی تھی۔ بہت گوری چٹی رنگت تھی، وہ عام لڑکیوں جیسی ہرگز نہیں لگ رہی تھی، کیونکہ ان کے رنگ ایک حد سے بھی زیادہ سفید تھے اور ان کے ناخن بالکل گلابی تھے اور کافی لمبے۔ میں بہت گھبراہٹ کا شکار ہونے لگا۔ اچانک مجھے محسوس ہوا جیسے میرے ہاتھ پیر کانپنا شروع ہو گئے تھے۔ ان کے سامنے میں بہت گھبراہٹ کا شکار ہو کر اب اپنے چنوں پر توجہ دینے لگا اور پلیٹیں صاف کرنے لگا، تاکہ ان کو یہ محسوس نہ ہو کہ میری نظروں کا مرکز وہی تھی۔ تبھی اچانک دیکھتے ہی دیکھتے وہ لڑکیاں کہیں غائب ہو گئی۔ یہ سڑک کافی لمبی تھی جو کالج تک جاتی تھی، اور اتنی آسانی سے کوئی نہیں جا سکتا تھا، وہ بھی اتنے کم ٹائم میں۔ ابھی انہیں اتنا وقت نہیں ہوا تھا۔
उन लड़कियों की गैर मौजूदगी ने मुझे एक अजीब से खौफ में मुब्तला कर दिया, मगर फिर भी मैं दोबारा अपने काम में मसरूफ़ हो गया, क्योंकि तब तक ब्रेक हो चुकी थी और लड़कियां आनी शुरू हो गई थी। रेहड़ी पर एकदम से रश बढ़ चुका था। सब लड़कियों से फारिग होकर जैसे ही मैं पलटा, वो दोनों लड़कियां अब मेरे पीछे ही थी। उन्होंने वही अबाया ज़ेब तन किया था। उनके लंबे बालों की चोटियां उनके स्कार्फ से बाहर नुमायां हो रही थी, जो काफ़ी हद तक लंबी थी। कॉलेज के पीछे एक बहुत ही घना जंगल था, जिसमें आता जाता कोई नहीं था और काफ़ी हद तक झाड़ियाँ थी। रास्ता बिल्कुल भी जाहिर नहीं होता था। यह कॉलेज एक सुनसान इलाके पर वाक़ था। देखते ही देखते वो लड़कियां उन झाड़ियों में चली गई। मेरी हैरत की इंतहा नहीं रही कि यह कैसे मुमकिन था। यहाँ से तो आज तक कोई नहीं आया गया था, ना वहाँ पर जाने का रास्ता था, जबकि वह एक घना और सुनसान जंगल था। फिर उन लड़कियों का वहाँ जाना बहुत ही पुरस्कार मालूम हो रहा था। खौफ की वजह से अब मुझे ठंडे पसीने आने लगे। ये मंजर मेरे लिए बहुत नया और अजीब था। मैं जिस किसी से भी इस बात का जिक्र करता, वो उल्टा मुझ पर ही सवाल करता कि मैं किसी भी लड़कियों की जांच पड़ताल क्यों कर रहा हूँ। आखिर ये अब उन लड़कियों का रोज़ का मामूल बन गया था। वो रोज़ाना आती और मुझसे चने खाती और कुछ देर बैठकर चली जाती। एक दिन उनमें से एक लड़की मुझसे मुखातिब हुई, मेरा नाम पूछने लगी। मैं हड़बड़ा कर रह गया। उस लड़की की आवाज़ बहुत अजीब और पुरस्कार सी मालूम हो रही थी। मैं तो बस उसकी आंखों में ही घूरता रह गया। उसकी आंखें भूरे रंग की थी और वो मुझे देख रही थी। मैंने जब अपना नाम बताया तो वो बहुत हैरान हुई। तुम्हारा नाम इतना अजीब क्यों है? वो हैरत से पूछने लगी तो मैंने कहा कि हम पठान हैं। पठानों में इस तरह के नाम होते हैं, दरिया खान। मैंने झिझकते हुए उनका नाम पूछा तो एक का नाम महविश और दूसरी का नाम सहरिश था। वो दोनों दोस्तें थीं। उस दिन के बाद से अक्सर ये होने लगा कि वो जब भी आती तो मुझसे इधर उधर की बातें करने लगती। मैं भी उनके इंतज़ार में रहता। उनसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगता था। उनमें से महविश मुझे बहुत अच्छी लगती। वो बड़ी नरम मिजाज और ख़ूबसूरत लड़की थी। मुझे लगता था कि शायद मुझे महविश से मोहब्बत होने लगी थी, मगर उसका उस दिन यूं झाड़ियों में जाना भी मुझे हैरत में मुब्तला कर गया। मगर मैं जल्द ही इस बात से बाहर आ गया था, लेकिन मैं डरता था। मैं एक आम और गरीब पठान था जो चने बेचकर अपना गुजारा करता था, जबकि महविश मुझे किसी अच्छे घर से लगती थी, क्योंकि उसने हमेशा अच्छा लिबास पहना होता। वो हुलिये से अमीर दिखाई देती। फिर एक दिन मैंने उनसे पूछा कि आप लोग तो कॉलेज में नहीं पढ़ती हो, तो फिर आप रोज़ाना इधर उधर कहाँ आती हैं? पहले तो वो चंद लम्हों के लिए खामोश रहीं, फिर सहरिश ही कहने लगी कि हम यहाँ पर एक दफ्तर में काम करते हैं, तो दफ्तर जाने से पहले तुम्हारी चाट खा के जाते हैं। मैंने उनकी बात सुनकर समझकर सर हिला दिया, क्योंकि यहाँ पर करीब करीब काफ़ी सारे दफ्तर थे जहाँ पर बहुत सारे लोग काम करते थे। सहरिश और महविश से मेरी बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी। ख़ास तौर पर महविश तो मुझे बहुत पसंद थी। अब मैं अक्सर उनसे चनू के पैसे भी नहीं लेता। वो बहुत इसरार करती तो रख लेता, वरना मैं नहीं लेता। इसी तरह एक दिन घर से फ़ोन आ गया। वहाँ पर अम्मा की तबीयत बहुत ख़राब थी और वो मुझे बहुत याद कर रही थी। मुझे भी तो घर गए हुए 2 महीने हो गए थे। मैं पैसे तो भेजता था, लेकिन घर जाने का नाम नहीं लेता था, क्योंकि एक तो मेरा काम अच्छा चल निकला था और दूसरा महविश की वजह से मेरा जाने को दिल नहीं करता। लेकिन अम्मा के बारे में सुनकर मुझसे रहा नहीं जा रहा था, इसीलिए मैं उसी दिन मोहब्बत खान को बताकर अपने गांव के लिए रवाना हो गया। एक लंबे और थका देने वाले सफ़र के बाद जब मैं घर पहुंचा तो मुझे देखकर अम्मा जी जैसे जी उठी थी। कितनी देर मेरा चेहरा हाथों में थाम कर वो महसूस करती और रोती रही। तुम कहाँ चले गए थे? मैं कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ। अम्मा मुझसे शिकवा कर रही थी। मुझे पता था कि माँ मुझसे बहुत मोहब्बत करती है, इसीलिए ऐसे कह रही है। माँ से मिलने के बाद मैं सोने के लिए चला गया। अगले दिन जब उठा तो सबके साथ मिलकर नाश्ता वगैरह करने के बाद मैंने अम्मा से कहा कि मैं ज़रा होटल पर जाकर अपने पुराने मालिक से मिल आऊँ। माँ ने भी कहा कि हाँ, तुम्हें जाना चाहिए, वो कई बार तुम्हारे बारे में पूछ चुके हैं। मैं नाश्ते के फ़ौरन बाद ही उठ खड़ा हुआ और होटल चला आया। यहाँ पर अपने पुराने मालिक से मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा। वो भी मुझसे बहुत मोहब्बत से मिले। पुरानी यादें ताज़ा हो गई। मैं वहाँ से निकलने का इरादा कर ही रहा था कि इतने में मुझे सामने से एक लड़की आती दिखाई दी। ऐसे लग रहा था जैसे मैंने उसे पहले भी कहीं देखा है, लेकिन मुझे अंदाज़ा नहीं था कि वो लड़की महविश हो सकती है।
उसे सामने देखकर मैं एकदम हैरानी से उठ खड़ा हुआ। ये यहाँ पर कैसे आ गई? मैं हैरत से दिल ही दिल में सोच रहा था कि इतनी देर में वो मेरे करीब आ खड़ी हुई और हैरानी से कहने लगी, दरिया खान, तुम यहाँ पर? उसने हैरत से पूछा तो मैंने कहा कि मैं भी तुमसे यही पूछने लगा था कि तुम यहाँ पर कैसे? तो वो कहने लगी कि हमारे ऑफिस के ट्रिप के सिलसिले में मैं और सहरिश इधर आए हैं, साथ ही दफ्तर के कुछ लोग हैं। हमें यहाँ कुछ दफ्तरी काम है और हमारा इसी होटल में क्याम है। इतने में मेरे पास से एक वेटर गुजरा जो मुझे अजीब सी नज़रों से देखता हुआ चला गया। मुझे ऐसी नज़रों का पता था क्योंकि यहाँ पर लड़की से बात करने को इतना अच्छा नहीं समझा जाता था। मैं जानता था कि उसे भी ये बात अच्छी नहीं लगी, लेकिन ये बात किसी और लड़की की नहीं, महविश की थी। मुझे बहुत खुशी हुई थी कि महविश भी यहाँ पर आ गई है। मेरी खुशी छुपाई नहीं छुप रही थी। पर उसने मुझसे पूछा कि तुम यहाँ पर कैसे आए हो? तो मैंने उसे बताया कि ये मेरा गांव है, मैं यहाँ पर अपनी माँ की तबीयत पूछने आया हूँ। माँ की तबीयत बहुत ख़राब थी, वो मुझसे मिलना चाहती थी, इसीलिए मैं चला आया। तुम भी मेरे घर चक्कर लगाना, तुम्हें देखकर माँ बहुत खुश होंगी। मैंने खुशी से उसे अपने घर आने की दावत दी तो उसने सर हिला दिया। मैं बहुत खुशी खुशी घर वापस लौटा और सीधा माँ के पास जाकर बैठ गया। माँ कहने लगी, तुम तो बहुत खुश दिखाई दे रहे हो, क्या कहा तुम्हारे पुराने मालिक ने? तो मैंने माँ को सारी बात बता दी और महविश के बारे में सब बता दिया, जिसे सुनकर माँ खुश तो हुई, लेकिन कहने लगी कि हम पठान कबीले से हैं और तुम्हें पता है कि हम ज़ात बरादरी से बाहर शादी नहीं करते। माँ का ये कहना था कि मैं मायूस होकर बैठ गया। हालांकि ये बात तो मेरे सामने की थी, लेकिन मुझे उम्मीद थी कि एक वक्त आएगा मेरे कबीले के लोग भी अपने ख्यालात बदलेंगे और मान जाएंगे। ना जाने सारा दिन मैंने कैसे गुजारा। शाम को फिर मैं होटल की तरफ चला आया। मुझे होटल के बाहर ही महविश मिल गई, उसके साथ सहरिश भी थी। शायद महविश ने मेरे बारे में सहरिश को पहले ही बता दिया था, इसलिए मुझे देखकर वो बिल्कुल हैरान नहीं हुई। मैं महविश को लेकर वॉक करने के लिए निकल खड़ा हुआ और वो भी मेरे साथ चल दी, जबकि सहरिश होटल में चली गई। रास्ते में हम इधर उधर की बातें करने लगे कि अचानक मुझे मेरे सामने बड़ा भाई नज़र आ गया। बड़े भाई को देखकर मैं फितरी तौर पर थोड़ा डर गया, ऐसे जैसे मेरी चोरी पकड़ी गई हो, और भाई भी मुझे अजीब सी नज़रों से देख रहा था। फिर वो मेरे करीब आया और मुझे कहने लगा, दरिया खान, क्या तुम पागल हो गए हो? इतनी देर से किससे बातें कर रहे हो? भाई ने हैरानी से पूछा तो मैंने भाई की तरफ हैरत से देखा और कहने लगा, भाई मैं तो महविश से बातें कर रहा हूँ। तो भाई हैरानी से कहने लगे, कौन महविश? उनके इस तरह से कहने पर मैं बहुत हैरान हुआ और कहने लगा, भाई ये देखें, मेरे साथ ही तो चलती आ रही है। मैंने इशारा किया तो मेरी बात सुनकर भाई खौफजदा हो गए। उनका रंग जैसे एकदम जर्द पड़ गया और वो कहने लगे, तुम्हारे साथ तो कोई भी नहीं है, तुम वहाँ से अकेले ही चलते आ रहे हो। भाई की बात सुनकर मैं खौफ से उछल पड़ा और हल्के से गर्दन घुमाकर डर के मारे महविश की तरफ देखा तो अभी भी वहीं पर खड़ी थी, मेरी तरफ मुस्कुराते हुए देख रही थी। मैंने भाई से कहा कि भाई आपको कोई गलत फहमी हुई है, ये देखो महविश मेरे साथ ही तो है। मैंने महविश का हाथ पकड़कर भाई को दिखाया, लेकिन भाई का यही कहना था कि तुम अकेले हो, तुम्हारे साथ तो कोई भी नहीं है। मैं इतना खौफजदा हुआ कि बार बार महविश को देखने लगा। अगर मुझे नज़र आ रही थी तो भाई को क्यों नहीं दिखाई दे रही थी? मैं अपने आप में इतना उलझ गया कि अचानक महविश ने मेरी तरफ झुककर आहिस्ता से कहा, दरिया खान, मैं तुम्हारे अलावा किसी को भी नज़र नहीं आती। मैं खौफजदा हो गया और वहाँ से भागकर फ़ौरन घर वापस आ गया। जाकर अपने कमरे में बंद हो गया। अम्मा को जब मेरी आमद का पता चला तो वो मेरे पीछे चली आई और पूछने लगी, क्या बात है, तुम इतने परेशान और खौफजदा दिखाई दे रहे हो? मैं भी माँ को कुछ भी बताना नहीं चाहता था, क्योंकि वो मेरी बात सुनकर परेशान हो जाती और फिर अपनी तबीयत और ज़्यादा ख़राब कर लेती। इसीलिए मैंने माँ को कुछ नहीं बताया और यही कहा कि मैं बहुत थक गया हूँ, बस कुछ देर आराम करना चाहता हूँ। रात तक इस बात के बारे में सोच सोच कर मेरा दिमाग फट रहा था। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि भाई मुझसे झूठ बोल रहे हैं या सच, लेकिन भाई को मुझसे झूठ बोलने की क्या ज़रूरत थी, वो तो सच ही बोल रहे थे। मैं इन्हीं सोचों में घिरा हुआ था कि अचानक दरवाजे के नीचे से रोशनी अंदर आई। मैं चौंक उठा और वह रोशनी आहिस्ता आहिस्ता एक जगह पर इकट्ठी होने लगी।
मैं हैरत और खौफ के मारे उस रोशनी की तरफ देख रहा था। ये रोशनी एक शक्ल इख्तियार करती जा रही थी। फिर उस रोशनी से मेरे सामने 2 चेहरे नमूदार हो गए। उन दोनों चेहरों को मैं अच्छी तरह से पहचानता था। एक चेहरा महविश का था और एक चेहरा सहरिश का था। दोनों उस वक्त सफ़ेद रोशनी में नहाई हुई थी। फिर अचानक महविश मुझसे कहने लगी कि दरिया खान, तुम हमारे साथ चलो, हम तुम्हें लेने के लिए आए हैं। महविश की बात सुनकर मेरा रंग जर्द पड़ गया और मैं खौफ के मारे उससे कहने लगा, नहीं, मैं नहीं जा सकता, मुझे नहीं जाना। लेकिन मेरे इनकार का महविश पर कोई असर नहीं हुआ और उसने मजबूती से मेरा हाथ पकड़ा और मुझे अपने साथ ले गई। महविश के हाथ बहुत गर्म थे, जैसे आग की तपश में। मैं चिल्लाता रह गया। ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं मरने वाला हूँ। खौफ के मारे मेरी हालत पतली हो रही थी। न जाने मैं सफ़र में था या हवा में तैर रहा था, मुझे कुछ खबर नहीं थी। सारे रास्ते महविश ने मेरा हाथ नहीं छोड़ा। लेकिन कुछ देर बाद जब महविश के कहने पर मैंने अपनी आंखें बंद खोली तो मैं एक अजीब जगह पर मौजूद था। यहाँ इर्द गिर्द काले रंग की दीवारें थीं जिनके ऊपर अजीब तरह के नक्शो निगार बने हुए थे। दीवारों पर शैतानी मंत्र लिखे हुए थे। कमरे में धुआं सा महसूस हो रहा था। मैंने अपने इर्द गिर्द गर्दन को घुमाकर देखा तो मेरे अलावा वहाँ कोई मौजूद नहीं था। लेकिन फिर भी ऐसे लग रहा था जैसे कमरे में कोई और भी मौजूद है। कमरे में बदबू महसूस हो रही थी। मेरा सांस घुट रहा था। मुझे महविश और सहरिश का ख्याल आया। वो दोनों मुझे न जाने कहाँ पर लेकर आई हैं और ख़ुद कहाँ पर है। यहाँ पर अजीब सी बदबू फैली हुई थी। एक तरफ हल्का हल्का धुआं महसूस हो रहा था। मैं डर रहा था। उस जगह का जायज़ा लेने के बाद मैंने महविश और सहरिश को ज़ोर से आवाज़ें देना शुरू कर दी। लेकिन मेरे चीखने चिल्लाने पर भी जब उन दोनों में से कोई नहीं आया तो मैं अपना सर दोनों हाथों में थामे बैठ गया। इतने में मेरे करीब से बदबू आने लगी। उस बदबू से मेरा दिमाग चकरा गया और अब ये बू मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। मेरा सांस लेना मुश्किल हो रहा था। मैंने अपना सर उठाकर देखा तो मेरे सामने खौफनाक चेहरे वाली चुड़ैल खड़ी थी, जिसके लंबे लंबे बड़े और नोकीले दांत बाहर को निकले हुए थे। उसके बाल गंदे और गर्द से अटे हुए थे। वो लाल रंग की लिपस्टिक लगाए हुए वहीं खड़ी थी। उसकी आंखें बहुत बड़ी थी जिन्हें देखकर खौफ महसूस हो रहा था। उसका काला रंग तवे को भी शर्मा रहा था। उसकी गोल गोल आंखें बाहर को निकली हुई थी। उसे देखकर मेरे मुंह से बेसाख्ता चीख बरामद हुई। मैं पठान था और मर्द था, फिर भी शदीद खौफज़दा हो गया। मेरी चीख के जवाब में वो ज़ोर से कह के लगाने लगी और कहने लगी, इतने जवान होकर एक चुड़ैल से डर रहे हो। मैं उसकी बात सुनकर शर्मिंदा हो गया। वो कितनी देर हंसती रही। जब उसके कह के रुके तो वो कहने लगी, यहाँ पर चीख कर अपना वक्त बर्बाद मत करो, खामोशी से यहाँ बैठे रहो। महविश और सहरिश खुद ही तुम्हारे पास आएंगी। अब उनको आवाज़ मत देना। तुम्हारी आवाज़ हर जगह गूंज रही है और महल में सबको परेशान कर रही है। उस चुड़ैल ने भयानक आवाज़ में एकदम मेरे कान के करीब आकर कहा तो मैं डर कर उछल कर पीछे हट गया। मैंने उससे कहा कि मुझे इतना बता दो कि मैं कहाँ पर हूँ, तुम कौन हो, महविश और सहरिश कहाँ गई हैं। मैंने एक ही सांस में कई सवाल कर डाले, लेकिन उसने सिर्फ एक ही बात का जवाब दिया कि तुम इस वक्त जिन्नात की दुनिया में हो और शाह जिन्नात के महल में मौजूद हो। उसके जवाब से मैं इतना हैरान और परेशान हो गया, तो फिर महविश और सहरिश मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आई हैं? मैंने परेशानी से पूछा तो वो चुड़ैल मुझे घूरने लगी। कोई जवाब दिए बिना वहाँ से चली गई। अब मैं आराम से दीवार से टेक लगाकर बैठ गया और सोचने लगा कि आखिर मुझे यहाँ लाने के पीछे उन दोनों का क्या मकसद हो सकता है, क्योंकि मेरे तो वहमो गुमान में भी नहीं था जो कुछ उन्होंने सोचा हुआ था, और जो मुझे उनके इरादों का पता चला तो मैं दंग रह गया। मैं यहाँ इस कदर बदबूदार और तारीक कमरे में अकेला बैठा हुआ था। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि महविश और सहरिश ने मेरे साथ क्या धोखा किया है। मैं जल्द से जल्द उनसे मिलना चाहता था ताकि उनसे बात करके यहाँ से निकलूं, लेकिन वो चुड़ैल मुझे उनसे मिलवा नहीं रही थी। मुझे अपने पीछे अपने घर की भी फिक्र थी। माँ का ख्याल भी बार बार सता रहा था। मुझे अपने काम का भी ध्यान था। इतनी मुश्किल से मैंने सारा काम सेट किया था और अब मेरे इस तरह गायब होने से कहीं मेरा सारा काम चौपट न हो जाए। मैं अजीब बेबसी के आलम में बैठा हुआ था कि अचानक कमरे में एक तेज़ रोशनी फैलने लगी। ये रोशनी इतनी तेज़ थी कि मेरी आंखों को चंदी आ गई। मैंने उस रोशनी से बचने के लिए अपनी आंखों पर हाथ रखा और फिर कुछ देर बाद जब हाथ हटाया तो मेरे सामने महविश खड़ी थी।
वो उसी तरह मुस्कुरा रही थी जैसे वो हमेशा मुस्कुराती है। उसको देखकर मुझे गुस्सा आ गया। मैं फौरन उठ खड़ा हुआ और उससे पूछने लगा कि तुमने मेरे साथ ये सब कुछ क्यों किया है? क्यों तुमने मेरे साथ ऐसा किया? क्यों मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर रही हो? तो वो कहने लगी, मुझे तुम अच्छे लगते हो, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ, इसीलिए तुम्हें अपनी दुनिया में लाई हूँ ताकि तुम्हारे साथ अपनी दुनिया बसा सकूँ। तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद करने नहीं बल्कि बनाने के लिए तुम्हें यहाँ लाई हूँ। तुम्हें नहीं मालूम इस शादी से तुम्हें कितना फ़ायदा होगा। महविश के मुंह से मैं ये सब कुछ सुनना चाहता था, लेकिन इस तरह और इस अंदाज में नहीं। मैं तो उसे एक आम इंसान ही समझता था, लेकिन मुझे क्या पता था कि वो एक जिन्नज़ादी है और मैं भी उससे मोहब्बत करता था, लेकिन मेरा और उसका साथ नामुमकिन है। यही बात मैंने उसे साफ लफ्ज़ों में कह दी कि तुम एक जिन्नज़ादी हो जबकि मैं एक आम इंसान हूँ। हमारा मिलन मुमकिन नहीं। मैंने 2 टोक अल्फाज में कह दिया, लेकिन मेरी बात सुनकर वो आग बगोला हो गई और गुस्से से कहने लगी, ये तुम्हारी भूल है कि मैं तुमसे शादी नहीं करूँगी। मैं तुमसे हर सूरत शादी करूँगी। मैं शाह जिन्नात की बेटी और मेरे लिए कुछ नामुमकिन नहीं है। इसलिए तुम ये ख्याल अपने दिल से निकाल दो कि अपने घर वापस जाओगे या फिर यहाँ से तुम्हारी कोई मदद करेगा। महविश ने इतने गज़बनाक और सफाक अंदाज में कहा कि मैं खौफज़दा हो गया। उसकी आवाज़ गुस्से में एकदम तब्दील हो गई थी और काफ़ी भयानक और खौफनाक लग रही थी। मैं फटी निगाहों से उसकी तरफ देखने लगा। फिर अचानक से गुस्से से उसकी आग की लपेटें निकलने लगी आंखों से। उन लपेटों की तपश से मैं जलने लगा। मैं तकलीफ के मारे चीखने और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा। वो सामने खड़ी मुझे देख रही थी। मैं हैरानी से महविश की तरफ देख रहा था, क्योंकि मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि वो मेरे साथ ऐसा सलूक करेगी। मेरे दोनों हाथ जल गए और उन पर ज़ख्म बन गए। उसके बाद भी वो रुकी नहीं और गुस्से से चली गई। उसके जाते मैं अपना सर दोनों हाथों में थाम कर बैठ गया, लेकिन दर्द की टीसू ने मुझे टिकने नहीं दिया। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं इस मुसीबत से कैसे निकलूं। मैंने अपने सारे करदा ना करदा गुनाहों की माफ़ी भी मांग ली। जलने की तकलीफ़ बहुत ज़्यादा थी और बहुत मुश्किल से मैं बर्दाश्त कर रहा था। अपनी माँ को याद करते कब मेरी आँख लग गई, मुझे खबर ही नहीं हुई। मैं काफ़ी गहरी नींद में था जब मैंने ख्वाब देखा कि एक गहरा कुआं है। उस कुएं का पानी बहुत खुशनुमा लग रहा था, लेकिन उसका रंग काला लग रहा था। मैं थोड़ा हैरान हुआ। फिर मैंने किनारे पर खड़े होकर देखा तो एकदम उस पानी को पीने की हसरत मेरे दिल में जाग गई, लेकिन उस पानी को कुएं से निकालने का कोई रास्ता नहीं था। वहाँ ना तो कोई रस्सी थी, ना ही कोई ढोल था। वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं था जिसकी मदद से मैं पानी निकाल कर पी सकता। लिहाजा अपनी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए मैंने कुएं में उतरने का फैसला किया। मैं जैसे जैसे कुएं से उतरता जा रहा था, कुएं में से बदबू आने लग गई। कुएं से चीखों की आवाज़ें बुलंद हो रही थी, जैसे कोई मुझे डराने के लिए ऐसे भयानक अंदाज में चीख रहा है। मैं खौफज़दा हो गया। अब मैं वापस पलटना चाहता था। मैंने अपनी ख्वाहिश को ख़त्म कर दिया। मुझे अब पानी नहीं चाहिए था। मैं वापस जाना चाहता था, लेकिन मैं जितना वापस जाता उतना नीचे हो जाता। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि क्या हो रहा है। ये शदीद बेबसी मुझे रुलाने लगी। इर्द गिर्द की पूरी सरारियत और खौफनाकी मुझे डरा रही थी। समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। मैं ऊपर की तरफ बढ़ने लगा कि एकदम से अचानक मेरे सामने भयानक चेहरा नमूदार हुआ। उसकी लंबी और बारीक जुबान बाहर को लटक रही थी। बड़ी बड़ी आंखें गोल अंदाज में घूम रही थी। वो सांप की तरह सरसरा रहा था। फिर अचानक मुझे कहने लगा, नीचे उतर जाओ, तुम्हारी इसी में भलाई है। उसकी भयानक आवाज़ सुनकर मैं खौफज़दा हो गया और अपने हाथ पैर छोड़ बैठा, जिससे मेरा तवाज़ुन बिगड़ गया और मैं नीचे कुएं में गिर गया। फिर पानी में गिरते जो कुछ मैंने देखा उसने तो मेरी रूह फना कर दी। पानी में गिरते ही एकदम से मेरी आँख खुली। मैं उठा तो पसीने से शराबूर था। मेरा दिल धड़क रहा था। मैं अपने आप पर काबू पाने की कोशिश कर रहा था। इतने में मुझे अपने कमरों में तेज़ चीखों की आवाज़ें सुनाई दी। बाहर से बहुत शोर बुलंद हो रहा था। बहुत भयानक और खौफनाक आवाज़ें बुलंद हो रही थी। मुझे अंदाज़ा नहीं हुआ कि ये खुशी की आवाज़ें या फिर गम की, लेकिन वो शोर काफ़ी देर जारी रहा और फिर ख़त्म हो गया। मैं इंतज़ार कर रहा था कि शायद कमरे में कोई आए। मैंने उस चुड़ैल को, महविश को और सहरिश को आवाज़ें दी, लेकिन उनमें से कोई वापस नहीं आया। मैं बेबसी के मारे रोने लगा। फिर शायद आधी रात का वक्त था जब महविश दोबारा चली आई और कहने लगी, अब बताओ तुम्हारा क्या इरादा है? तुम मुझसे शादी करोगे कि नहीं? महविश ने मुझसे 2 टोक अंदाज में पूछा तो मैंने उसे साफ कह दिया कि मैं हरगिज़ तुमसे शादी नहीं करूँगा। मुझे वापस जाना है। मेरे इनकार पर उसे गुस्सा आ गया और वो मुझ पर चिल्लाने लगी। फिर वो एकदम गज़बनाक होकर कहने लगी, पहले तो सिर्फ तुम्हारे हाथ जलाए थे,
अब तुम्हें पूरे का पूरा जलाकर भस्म कर दूंगी, तुम्हारा नामो निशान भी नहीं मिलेगा। इसीलिए अपने जहन को तैयार कर लो, शादी तो तुम्हें मुझसे ही करनी होगी। महविश का ये रूप देखकर मैं इतना खौफजदा हुआ कि एकदम बेहोश होकर गिर गया। फिर न जाने मुझे कितनी देर बाद होश आया, लेकिन जब मुझे होश आया तो मैंने देखा ये जगह वो वाली जगह नहीं है जहाँ पर मैं पहले से मौजूद था। ये जगह उस जगह से काफ़ी बेहतर थी। मैं अपने दुखते सर को पकड़ता एकदम से उठा। मेरा दिल मतली हो रहा था। मैंने एक तरफ को झुककर क़े कर दी। मुझे होश में आए हुए भी कुछ ही देर गुजरी थी कि सहरिश मेरे पास चली आई। मैं सहरिश को देखकर एकदम खुश हो गया। मुझे उससे मदद की उम्मीद थी। मैंने सहरिश से कहा कि तुम्हारी बहुत मेहरबानी, तुम मुझे यहाँ से निकाल दो, मैं यहाँ पर नहीं रह सकता। मेरे पीछे मेरे माँ बाप हैं, बहन भाई हैं, मेरा काम है। ये तुम्हारा मुझ पर बहुत बड़ा एहसान होगा कि तुम मुझे यहाँ से निकाल दो। सहरिश खामोशी से मेरी बेबसी भरी फरियाद सुनती रही और फिर अचानक से एकदम धीमे अंदाज में कहने लगी, दरिया खान, तुम अभी खामोश रहो, मैं तुम्हारी मदद करूँगी। मैं जानती हूँ कि तुम बेकसूर हो, लेकिन मौका महल देख कर ही तुम्हें यहाँ से निकाल सकती हूँ। अभी तुम बस खामोशी से महविश की हाँ में हाँ मिलाते रहो। सहरिश का इतना कहना था कि मेरा चेहरा खिल उठा। मैंने उससे कहा कि ठीक है, जैसा तुम कहोगे मैं वैसा ही करूँगा, लेकिन खुदा का वास्ता है मुझे यहाँ से निकाल दो। ये कहते हुए मैंने उसके आगे हाथ जोड़ दिए। उसके बाद सहरिश वहाँ रुकी नहीं, फौरन चली गई। अब मैं लम्हा बलम्हा यहाँ पर गिनकर गुजार रहा था। मुझे सहरिश की तरफ से उम्मीद थी कि वो मुझे यहाँ से निकाल देगी। रात होते ही महविश यहाँ आई और कहने लगी कि अब तुम्हारी तबीयत कैसी है। मैंने उससे कहा कि मैं बेहतर हूँ। महविश कुछ देर यूं ही खामोश रही और फिर कहने लगी, इस जुम्मे को हमारी शादी है, तुम अपने आप को जहनी तौर पर तैयार कर लो। अब तुम्हें यहीं पर रहना है और शाह जिन्नात के दरबार में तुम्हें हिस्सा मिलेगा। तुम्हें इसी ओहदे पर काम करना है। बाकी तुम्हारे पीछे तुम्हारे माँ बाप और बहन भाइयों का ख्याल हम रखेंगे, उन्हें किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होगी। उसने कहा तो मैंने उसकी हाँ में हाँ मिला दी और उससे कहा कि ठीक है, जैसे तुम मुनासिब समझती हो मैं करने को तैयार हूँ। मेरे हाँ कहने पर महविश एकदम खामोश हो गई और जल्दी से मेरे पास आकर बैठ गई। मैं डर कर थोड़ा पीछे हट गया, क्योंकि अब तो मैं उसकी हकीकत जानता था। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया, मेरा हाथ कांपने लगा। मेरे हाथ की कपकपी को देखकर वो कहने लगी, तुम डरो मत, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ, तुम्हें अपनाना चाहती हूँ, इसलिए तुम मुझसे डरो मत। उसके बाद महविश कितनी देर वहाँ बैठी रही और मुझसे अपने आने वाले मुस्तकबिल के बारे में बातें करती रही। मुझे उन बातों से कोई दिलचस्पी भी नहीं थी। मैं तो सिर्फ अपना वक्त गुजार रहा था कि कब सहरिश मेरी मदद के लिए आए और कब मैं यहाँ से जाऊँ। लेकिन मैंने महविश पर किसी तरह ये जाहिर नहीं होने दिया और ना ही उसे सहरिश की आमद के बारे में बताया। घंटों महविश मेरे पास बैठकर फिर चली गई और जाते जाते मुझे कह गई कि अब निकाह वाले दिन ही मुलाकात होगी। वो सारी रात मेरी सहरिश के इंतज़ार में गुजर गई, लेकिन सहरिश नहीं आई। मैं मायूस हो गया कि शायद सहरिश ने मेरे साथ धोखा किया है। लेकिन अगले ही दिन शाम के वक्त अचानक सहरिश चली आई और मुझे कहने लगी, तुम जल्दी से तैयारी पकड़ो, मैं तुम्हारी दुनिया में छोड़ाऊँ तुम्हें। मेरे तो हाथ पैर फूल गए। मैंने उससे कहा कि मैं तैयार हूँ, बस तुम मुझे मेरे घर छोड़ाओ। सहरिश ने मुझे बहुत अजीब नज़रों से देखा। उसकी नज़रों से मुझे कुछ घबराहट सी हुई और मेरे दिल को कुछ होने लगा, लेकिन मैंने उसे कुछ भी नहीं कहा और सहरिश के साथ जाने के लिए तैयार हो गया। सहरिश बहुत हिफाजत से मुझे वापस मेरी दुनिया में ले आई और मैंने उसका शुक्रिया अदा किया और उससे पूछा कि सहरिश, तुमने मेरी मदद क्यों की, जबकि महविश तुम्हारी बहुत अच्छी सहेली थी और वो शाह जिन्नात की बेटी है, फिर तुमने इतना बड़ा ख़तरा क्यों मोल लिया। मेरे पूछने पर सहरिश ने मुझे अजीब सी तरसी हुई निगाहों से देखा और फिर कहने लगी, ये एक लंबी कहानी है, मैं रात को तुमसे मिलने आऊँगी तो फिर तुम्हें सारी बात सुनाऊंगी। अभी मुझे जाने दो, अभी मेरे पीछे मामला ख़राब है, सब तुम्हें ढूंढ रहे होंगे और मेरे वहाँ से गायब होने पर सबको शक हो सकता है। मैं सहरिश की बात समझ गया और उसे जाने की इजाज़त दे दी। मैं घर पर आ गया। माँ मेरा ही इंतज़ार कर रही थी और बहुत परेशान थी। मुझसे पूछने लगी कि इतने दिन कहाँ लगा दिए तुमने, तुम अचानक कहाँ चले गए थे। मैंने माँ को मज़ीद परेशान करना मुनासिब नहीं समझा।
और एक दोस्त के एक्सीडेंट का बताकर अपने कमरे में चला आया। मुझे अब तक समझ नहीं आ रही थी कि मेरे साथ ये सब कुछ क्या हुआ है। मैं किस तरह से इन सारी चीज़ों से बाहर निकला हूँ, कैसे मैं इससे बड़ी मुसीबत में पड़ गया था। मैं जितना उस बारे में सोचता उतना ही उलझता जाता। अब मुझे सहरिश का इंतज़ार था, क्योंकि मैं उससे सारा सच मालूम करना चाहता था। रात हो गई लेकिन सहरिश नहीं आई। काफ़ी दिन इसी तरह से गुजर गए। मैं रोज़ सहरिश का इंतज़ार करता लेकिन वो नहीं आती। मैं शहर वापस काम पर आ गया। दोबारा से आलू चने का काम शुरू कर दिया था। मेरे पास अब बहुत ग्राहक थे, काम मेरा अच्छा था, लेकिन मैं रोज़ लाशऊरी तौर पर सहरिश का इंतज़ार करता। फिर एक दिन वो अपने मखसूस वक्त पर आ गई। मैंने उससे बेकरारी से पूछा, तुमने इतने दिन कहाँ लगा दिए? मैं रोज़ तुम्हारा इंतज़ार करता था। मेरी बात पर वो मुस्कुरा दी और कहने लगी, मुझे मालूम है कि तुम मेरा इंतज़ार करते थे, लेकिन अभी मैं नहीं आ सकती थी, बहुत सारी मजबूरियाँ थी, इसलिए आज चली आई हूँ। मैंने उसे बैठने के लिए स्टूल दिया और ख़ुद भी उसके करीब बैठ गया। मैंने उससे पूछा कि अब मुझे बताओ कि सच क्या है, तुमने मेरी मदद क्यों की? मेरे पास से गुजरते लोग मेरी तरफ हैरानी से देख रहे थे। मुझे मालूम था कि वो यही सोच रहे होंगे कि ये आदमी पागल है, खुद से बातें किए जा रहा है, लेकिन उन्हें क्या मालूम कि मेरे सामने सहरिश बैठी है। मेरे पूछने पर सहरिश ने गहरा सांस भरा और कहने लगी, मैं और महविश बचपन से सहेलियाँ हैं। महविश शाह जिन्नात की बेटी है और मैं जिन्नात के वज़ीर ख़जाना की बेटी हूँ। हमारी बचपन से ही बहुत दोस्ती थी। हम हर जगह पर इकट्ठे जाते, इकट्ठे पढ़ते, इकट्ठे खेलते हैं। वो ज़रा रंगीन मिजाज की लड़की थी, जो उसे पसंद आ जाता उसे अपने महल में ले आती। तुमसे पहले भी वो कई इंसानों को ला चुकी थी। कुछ अरसा उनके साथ रहती और फिर उन्हें छोड़ देती। महविश की आदत मुझे बहुत बुरी लगती थी। मैं उसे कई बार मना कर चुकी थी, लेकिन वो बाज नहीं आई थी। एक दिन इसी तरह हम जिन्नात की दुनिया से निकलकर इंसानों की दुनिया में सैर की गर्ज से आए थे। यूं ही सैर करते करते उसकी नज़र तुम पर पड़ी। तुम पठान थे, खूबसूरत थे। महविश को तुम बहुत अच्छे लगे। वो तुम पर पहली नज़र में ही मर मिटी और उसके बाद रोज़ तुमसे मिलने के बहाने चाट खाने के लिए आने लगी। आहिस्ता आहिस्ता उसने अपनी दिलचस्पी जाहिर करना शुरू कर दी। तुम्हें भी महविश अच्छी लगी थी। तुम्हारी नज़रें भी यही बताती थी। और क्यों ना अच्छी लगती, वो थी भी बहुत खूबसूरत। और फिर महविश ने एक दिन मंसूबा बनाया और तुम्हें अपने साथ जिन्नात की दुनिया में ले गई। हालांकि मैंने उसे बहुत समझाया था, बहुत मना किया, लेकिन वो बाज नहीं आई। और उसका यही कहना था कि वो तुमसे सच्ची मोहब्बत करती है, तुम्हारे साथ सारी ज़िंदगी गुजारना चाहती है। लेकिन मुझे तो उसकी फितरत का मालूम था, इसलिए मैंने उसे तुमसे दूर रहने का कहा, क्योंकि तुम न जाने कब और कैसे मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई थी। ऐसा पहली बार हुआ था कि कोई आदमी मुझे अच्छा लगा, इसलिए मैं हर कीमत पर महविश से तुम्हें दूर रखना चाहती थी। लेकिन महविश ने मेरी बात नहीं मानी और अपनी मनमानी की। वो तुम्हें लेकर जिन्नात की दुनिया में चली गई और ज़िंदगी में पहली बार मेरा महविश से झगड़ा हुआ। मैं उसके साथ तुम्हारे लिए बहुत लड़ी थी, लेकिन मैंने उसे बताया नहीं कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। महविश के ऊपर मेरी बातों का कोई असर नहीं हुआ और वह अपनी मर्जी करके रही। जब मुझे पता चला कि उसने तुम्हें कैद खाने में लाकर डाल दिया तो मेरे दिल को कुछ हुआ। मैं तुमसे मिलने आना चाहती थी, लेकिन मैं भी उसके साथ नाराज़गी की वजह से महल में नहीं जा सकती थी। इसीलिए पहले मैंने महविश के साथ सुलह की और फिर मौके का इंतज़ार करने लगी। जैसे ही मौका मिला तो तुमसे मिलने के लिए आई। तो मैं उस हाल में तुम्हें देखकर मुझे बहुत बुरा लगा। मेरा दिल कांपने लगा और मैंने उसी वक्त ये तहैया कर लिया था कि चाहे कुछ भी हो, मैं तुम्हारी मदद ज़रूर करूँगी। अब तो मैं तुम्हें वापस तुम्हारी दुनिया में पहुँचा कर ही दम लूँगी। और फिर मैंने तुम्हें वापस तुम्हारे अपनों से मिला दिया। सहरिश ने अपनी बात मुकम्मल की तो मुझे एहसास हुआ कि वो शुरू से ही मुझ में दिलचस्पी रखती थी, लेकिन उसने कभी इस चीज़ का इजहार नहीं किया था जिसका दुख हो रहा था। और महविश जैसी खुदगर्ज लड़की से मुझे नफ़रत महसूस हो रही थी। मैंने सहरिश के हाथ के ऊपर अपना हाथ रखकर उसे जैसे बोसा दिया और कहा, सहरिश, मुझे तुम्हारी मोहब्बत की कदर है और मैं दिल से चाहूँगा कि तुम्हें भी कोई कदरदान ही मिले। सहरिश मेरी तरफ देखकर फीकी सी हंसी हंसती और फिर वहाँ से एकदम धुआं बनकर गायब हो गई। मैंने गहरी सांस भरी और दोबारा काम में लग गया। इस बात को कई महीने गुजर चुके थे, लेकिन मुझे अब भी सहरिश की याद सताती रही।
महविश की मोहब्बत मेरे दिल में तो थी, लेकिन उसकी खुदगर्जी मुझे ऐसा सोचने नहीं देती और सहरिश का ख्याल बार बार मेरे दिल में आता। मेरी अम्मी ने मेरी गायब दिमागी को महसूस किया और मुझसे कई बार इस बारे में दरियाफ्त किया, लेकिन मैंने उन्हें कुछ भी नहीं बताया। और फिर मेरे बड़े भाई ने मेरी माँ को सारी बात बता दी, क्योंकि उन्हें महविश वाले मामले का तो पता था। अम्मी ने मेरा बहुत इलाज करवाया, तावीज़, धागे, दम दरूद, हर चीज़ करवाई और 2 साल के बाद मैं वापस ज़िंदगी की तरफ नॉर्मल हालत में आ गया हूँ। अब अम्मी मेरे लिए लड़कियाँ देख रही हैं और वो चाहती हैं कि मैं जल्द से जल्द अपना घर बसाकर अपनी खुशियों में मगन हो जाऊँ। लेकिन अब भी कभी कभी मुझे सहरिश की याद सताती है। क्या मालूम कि ज़िंदगी के किस मोड़ पर उससे मुलाकात हो ही जाए। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उर्दू रेडियो को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।